Welcome to video lecture series on structural analysis 1. Now in this lecture we are going to start with a new unit, that is analysis of continuous beam using slope deflection method. Now as we have discussed earlier that in strength of material, to draw SFD and BMD we required the unknown reactions and unknown moments, right? And here also we required the unknown reactions and unknown moment to draw the shear force and bending moment diagram. But in strength of material, the beam were determinant beam, right? And those beam were analyzed, means to find the unknown reactions and unknown moment, we can simply use three equilibrium equations, and using those equations we can find out those moment. But since in structural analysis 1, also known as theory of structure, the beams are indeterminate beams, means these three equations are not sufficient to find out the unknown reactions and moment or to analyze the beam. Now here we have to use the different methods. In last unit we have seen three moment theorem, also known as Clapeyron's theorem, to solve this indeterminate beam. Here we are going to see actually slope deflection method to analyze this indeterminate structure. Now this slope deflection method is similar to this three moment theorem, but the only difference is that in three moment theorem, in three moment theorem, the sign conventions were sagging and hogging. Means we have considered, if the shape is like this, we have considered this as sagging, as positive, and if shape is like this, we have considered this as hogging and negative. Whereas in slope deflection method, we have to consider clockwise as positive and anti-clockwise as negative. Clockwise movement as positive and anti-clockwise movement as negative. Okay. Now how this is the formula for slope deflection method, और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो हम देखेंगे. तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले एक फिक्स्ड बीम ले लिया which is fixed at A and B, having length L and having some loading, let us say W and small w here. Okay. अब क्या होगा, इसके वजह से this will be the deflection shape और इसके वजह से कुछ मूवमेंट फॉर्म होंगी like this. This is FMAB and this is FMBA, fixed moment AB and fixed moment BA. FM means fixed moment AB and fixed moment BA, right? अब हमने क्या किया कि यहाँ का जो A सपोर्ट है वो A सपोर्ट का फिक्सिटी निकाल दिया और उसको यूनिट रोटेशन अप्लाई किया. दैट यूनिट रोटेशन इज थीटा A. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ बीम, okay, if this is a beam, this is fixed at this B support, this is fixed here, whereas a unit rotation is applied like this. So this will be the bending shape, right? Now what will happen? Now you can see here, this thumb is resisting the movement. In this case, this thumb is resisting the movement and thumb is going clockwise, whereas in this case, the first finger is applying the rotation and it is going also clockwise. So both movement are clockwise like this. This is also clockwise and this is also clockwise. Now if we know this theta, we can easily find out the moment occur at this point, and moment occurred at this point is 4EI theta A by L. Similarly, अगर यहाँ पे इतनी मोमेंट फॉर्म होती है तो उसके जो अपोजिट एंड रहता है वहाँ पे कितनी मोमेंट फॉर्म होती है, हाफ ऑफ दिस. तो यहाँ पे अगर 4EI थीटा A by L है तो यहाँ पे कितनी फॉर्म होंगी, 2EI थीटा A by L, एंड बोथ आर क्लॉकवाइज. सिमिलरली जैसे हमने यूनिट रोटेशन एट A अप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे, यूनिट रोटेशन एट B अप्लाई करेंगे, यानी ये पॉइंट पे. यानी अब क्या करेंगे हम, ये जो एंड है ये फिक्स रखेंगे और यहाँ पे यूनिट रोटेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अभी दिस इज फिक्स्ड एंड और यहाँ पे अगर मैं यूनिट रोटेशन अप्लाई कर रहा हूँ सो इट विल बी लाइक, सॉरी, अगर मैं यूनिट रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है, दिस इज यूनिट रोटेशन बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. सो यहाँ पे अगर हम यूनिट रोटेशन अप्लाई करते हैं लाइक दिस, सो इट विल रोटेट लाइक दिस. नाउ हियर जिसको रोटेट कर रहा हूँ मैं, ये मूवमेंट कैसी है, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज और यहाँ पे देयर विल बी अ क्लॉकवाइज मूवमेंट. नाउ सिंस वी आर अप्लाइंग हियर, so here the moment will be 4EI theta B by L, since this is theta B by L, और इसका आधा आ जाएगा यहाँ पे 2EI theta B by L, right? Next, what if the support sinks? अगर दो सपोर्ट्स है और दो सपोर्ट में का एक सपोर्ट अगर सिंक हो गया या नीचे चले गया, सॉइल अगर वहाँ पे सॉफ्ट है और वो नीचे चले गया, तो वो केस में कितनी मूवमेंट फॉर्म होंगी वो हमें देखना है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी अगर ये एंड फिक्स है और अगर ये एंड नीचे जा रहा है लाइक दिस, सो सी, अगर एक एंड फिक्स है और एक एंड नीचे जा रहा है तो इस टाइप की डिफ्लेक्शन शेप रहेगा.
है ना। अगर ये डिफ्लेक्शन शेप है तो एक जो मोमेंट रहेंगी ऐसी रहेंगी क्योंकि ये थंब रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे और ये दूसरा थंब नीचे लेके आ रहा है, राइट। सो यू कैन सी दिस थंब इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज वेयर एज दिस थंब इज ऑल्सो गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. So both are anti-clockwise movement, right? And therefore this is 6 EI del upon L square. This moment is 6 EI del upon L square and this moment is also 6 EI del upon L square. अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने मोमेंट की समीशन करेंगे. तो अगर मुझे एम ए बी निकालना है यानी फाइनल मोमेंट, दिस ए बी इज फाइनल मोमेंट, अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो ये जो साइन कन्वेंशन है इसके साइन कन्वेंशन छोड़ दीजिए, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, फॉरगेट इट, उसको आप सिर्फ पॉजिटिव लीजिए, ठीक है. तो एफ एम ए बी इसकी साइन कन्वेंशन कैसे है, क्लॉकवाइज, इसलिए 4 EI थीटा ए बाय एल. फिर नेक्स्ट इसकी साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज, इसलिए 2 EI थीटा बी बाय एल. एंड नेक्स्ट इसकी साइन कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, राइट. सिमिलरली अगर हम इसमें से EI यानी 2 EI बाय एल अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 थीटा ए, यहाँ पे बचेगा थीटा बी और यहाँ पे बचेगा 6 डेल्टा अपॉन एल. सिमिलरली ये केस में हम करते हैं एफ एम बी ए प्लस 2 EI थीटा ए बाय एल प्लस 4 EI थीटा बी बाय एल माइनस, सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज, 6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर. इसमें से भी हम 2 EI बाय एल का अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो वी विल गेट दिस टू फॉर्मूलाज. नाउ अगर आप अच्छे से देखोगे ये दो फॉर्मूले में तो ये देखो, ये एफ एम ए बी एफ एम बी ए 2 EI बाय एल 2 EI बाय एल 2 थीटा ए, तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ थीटा ए यानी आधा. यहाँ पे थीटा बी आधा है तो यहाँ पे डबल है 2 थीटा बी माइनस 3 डेल अपॉन एल एंड 3 डेल अपॉन एल. अगर मान लो सिंकिंग नहीं है यानी डेल्टा कितना है, 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएंगी और ये भी टर्म 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना फॉर्मूला ही बचेगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एफ एम ए बी कैसे कैलकुलेट करना है या एफ एम बी ए कैसे कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम इधर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये एफ एम ए बी या एफ एम बी ए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बीम लेते हैं विच इज फिक्स्ड एट ए एंड बी विथ लेंथ एल एंड हैविंग अ सपोर्ट हैविंग अ लोड एट सेंटर, एग्जैक्टली एट सेंटर L/2 एंड L/2. तो वो केस में सबसे पहले हम पीछे जाते हैं कि अगर ये सिंपली सपोर्ट होता तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती वो ट्रायंगुलर होती और ये जो मोमेंट रहता था, ये मोमेंट कितना रहता था, WL/4. लेकिन अगर ये फिक्स है तो वो केस में सपोर्ट मोमेंट्स कितनी आएंगी, तो सपोर्ट मोमेंट्स आएगी, ये आ जाएंगी माइनस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है इसलिए रहेगा ये प्लस, माइनस WL/8 एफ एम ए बी एंड एफ एम बी ए प्लस WL/8. नेक्स्ट अगर यही लोड सेंटर पे नहीं है, इसेंट्रिक है ए बी पे, इन दैट केस सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट क्या आती है हमारी, WAB/L, राइट. और ये जो मोमेंट्स है और ये मोमेंट्स है, ये मोमेंट है एफ एम ए बी माइनस WAB² अपॉन एल स्क्वायर. अब इसे याद कैसे रखना है, अगर हमें इधर का निकालना है तो इसका स्क्वायर और अगर हमें इधर का निकालना है तो इसका स्क्वायर, ठीक है. सो एफ एम ए बी इज इक्वल्स टू माइनस WAB² अपॉन एल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस WA² अपॉन एल स्क्वायर. ओके. सिमिलरली अगर टोटल यूडीएल अगर है तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखी थी, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, WL²/8. फिक्स्ड अगर है तो सपोर्ट मोमेंट कितने हो जाएंगे, माइनस WL²/12 एंड प्लस WL²/12. नेक्स्ट अगर फिक्स्ड बीम है या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे ए डिस्टेंस पे एक मूवमेंट है क्लॉकवाइज, ठीक है, एम मूवमेंट है, तो इसकी अगर हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ऐसी देखी थी, MA/L एंड MB/L, दिस इज पॉजिटिव दिस इज निगेटिव. फिक्स्ड एंड मूवमेंट कैसे रहेंगे, ये जो रहेगा ये दिस विल बी क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी ऑल्सो क्लॉकवाइज, तो दोनों के दोनों क्लॉकवाइज आएंगे. अभी तक हमने देखा दिस वाज निगेटिव पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे ये मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये दोनों क्लॉकवाइज रहेंगे और ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एफ एम ए बी का MB/L इन ब्रैकेट 2 - 3B/L. सिमिलरली एफ एम बी ए प्लस MA/L in bracket 2 - 3A/L. So in this formula if it is at A take B और अगर B का निकालना है तो take A, रिवर्स जैसे हमने ये केस में देखा था वैसे अपोजिट लेना है, ठीक है. So these are the formula. What if there is combination of loads? अगर combination of load है तो फिर कैसे करना वो देख लेते हैं. आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए.
एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोड्स है, वो केस में हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर ये फिक्स्ड बीम है, ओके, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 2 1 3 फॉर एग्जांपल, ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ एम ए बी और एफ एम बी ए, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम कैसा करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बीम को सिर्फ एक ही लोड अप्लाई करेंगे, सिर्फ ये लोड 10 किलो न्यूटन का, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना है 4, राइट। ये केस में ये मोमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे मैं एक कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, और उसके बाद हम दोनों, चलो ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मोमेंट कितनी आएंगे, अभी क्या फॉर्मूला है, W अपोजिट मीन्स बी स्क्वेयर, राइट। सो W A बी स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना आ जाएगा, W कितना है 10, 2 4 स्क्वेयर अपॉन L मीन्स टोटल इज 3 + 1 4 + 2 6 स्क्वेयर। ये मोमेंट ये हो गई। ये मोमेंट इसका उल्टा, यानी 10 × 2 स्क्वेयर × 4 अपॉन 6 स्क्वेयर, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फिर से ये बीम लेंगे और अब ये केस में ये 10 किलो न्यूटन को छोड़ देंगे और 20 किलो न्यूटन का लोड लेंगे। ये कितना है 3 और ये कितना है 3, फॉर एग्जांपल 3 3। सो अगर दोनों 3 3 है, यानी दोनों सेंटर पे है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, अब ये केस में क्या हो जाएंगे, दोनों मोमेंट्स, एक ये मोमेंट और एक ये मोमेंट क्या हो जाएंगे, WL/8। सो दिस इज माइनस, दिस वन इज प्लस। सिमिलरली माइनस WL/8 एंड प्लस WL/8, राइट। तो क्या मैं ये FMAB को ऐसा लिख सकता हूँ अभी यहाँ पे, अगर मैं ये WL/8 कैलकुलेट करता हूँ तो WL/8 कितना आ जाएगा, 20 × 6/8, ये हो जाएगा माइनस और हो जाएगा प्लस 20 × 6/8। तो अगर मुझे FMAB निकालना है तो अभी FMAB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FMAB इज इक्वल्स टू दिस 10 × 2 × 4 स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर, कैसा था माइनस, ये माइनस था और ये भी कैसा है माइनस, सो माइनस 20 × 6/8 और FMBA प्लस 10 × 2 स्क्वायर × 4/6 स्क्वायर, 10 × 2 स्क्वायर प्लस 20 × 6 WL/8। सो इस तरीके से हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ UDL प्लस लोड, मूवमेंट प्लस लोड, राइट। सो देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन। क्या करना है, हर एक को सेपरेटली कैलकुलेट करना है और उसके बाद इनको ऐड कर देना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दिस प्लस दिस, समेशन ऑफ दिस टू, और इसका आंसर क्या रहेगा, समेशन ऑफ दिस टू। वेरी सिंपल, राइट। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल start actually solving the numericals, right? In case of any query, you can comment in the comment box. Thank you.